Slide is visible to everyone. So today we have a hello, Jyoti. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, slide is visible to everyone. Yeah. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so we have a revision lecture of cell injury. Yes, ma'am. First of all, definition of cell injury. When a normal cell is exposed to external or internal stresses, or there is a direct injury by some physical means, or by some chemical, or by some pathogen, is called cell injury. Right? When a normal cell that exposed to any kind of external stresses, जो कि बाहर से उसको आ रही है, किसी टाइप की physical injury हो रही है, chemical injury हो रही है, or then may be possibility of internal stresses, that means उसके internal physiological environment में कोई change हो रहा है, or there is a direct injury like an accident, like a stab wound, और कोई physical means से injury, direct injury हो रही है, so or either by the chemical or by the pathogen is called the cell injury, right? Types of cell injury is a reversible cell injury and irreversible. There are two types of cell injury, either a reversible cell injury and a irreversible cell injury. Here the in a definition, the 3 points must be taken into a consideration. That is, number 1 is internal and external stresses. In a definition, there is internal and external stresses. What does it mean? Internal stresses and external stresses. Internal and external stresses means there is a change in internal environment of the cell, which either result in a shrinking or a bursting of the cell. That means either there is a shrinking or either there is a swelling of the cell if there is any kind of internal or external changes. हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है 12th में 10th में आपने पढ़ा होगा, किशमिश को पानी में रख देते हैं तो वो फूल जाती है ना. सो बिकॉज दैट अब्सॉर्ब्स वाटर, तो वाटर एब्सॉर्ब करने से सेल के अंदर क्या हुआ, उसका इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो गया, उसमें ज्यादा डाइल्यूशन हो गया, वो फूल गई. उसको अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा हमने कोई, तो उसमें क्या होगा, उसका श्रिंकिंग इफेक्ट होगा. क्यों? क्योंकि उसका इंटरनल एनवायरनमेंट फिर चेंज हो गया. क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ, अंदर से बाहर चला गया, वाटर बाहर चला गया, अंदर केमिकल चेंजेस हुए, जो भी वाटर कम हुआ, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए, एंड देन सेल गोज इनटू द श्रिंकिंग इफेक्ट. Second thing, that is chemical means in a definition. First thing in internal and external stresses. ये clear हो गया आपको? What are the internal stresses and external stresses? There is any change in their environment. And by the chemical means, when there is any kind of environmental change in a level of chemical composition, like if there is a bursting of lysosome, suddenly lysosomes are called as suicidal bags. They contain hydrolytic enzymes or any kind of toxic enzymes. So when there is a bursting of the lysosome in a row and there is a change in a chemical environment of the cell, this will also known as by injury by some chemical means. जरूरी नहीं chemical बाहर से आया, chemical अंदर lysosomes के अंदर bags थे, they are suicidal bags, वो फट गए और chemical release हो गया. And then third thing is pathogens. Pathogens multiply inside the cell and the cell becomes dead. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्या, मलेरियल पैरासाइट्स, वो जाके अंदर शाइजॉन्ट रिंग और वीरोजॉइट्स बनाते हैं, शाइजॉन्ट बनाते हैं, एंड अल्टीमेटली आरबीसी बर्स्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, क्योंकि वो उसी के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो क्लियर. देन टाइप्स ऑफ सेल इंजरी. There are two types of cell injury: reversible cell injury and the irreversible cell injury. Right? Reversible cell injury is what? Reversible cell injury means once the cell is injured and the injury causing agent, any kind of injury causing agent, either the physical means, pathogens, chemicals or internal or external stresses. Broad way में अगर हम define करें तो ये तीन चीजें आती हैं, external and internal stresses, pathogens and chemicals, right? So once the injury causing agent is removed and the cell recovers its original form in the sense of all the physiological functions are restored. That
this type of injury is known as reversible cell injury. Simple is that once the injury causing agent, suppose आपको कोई निमोनिया हुआ, कोई बुखार हुआ और आप उससे रिकवर कर जाते हैं, तो रिकवर कर गए, दैट मीन्स क्या हुआ कि आपकी सारी सेल्स नॉर्मल हो गई. बहुत छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मॉस्किटो बाइट हुई. मॉस्किटो बाइट हुई तो आपको मॉस्किटो ने वहां पे काटा, फिजिकल इंजरी हुई, बाहर से आया वो कीड़े ने काटा, आपको इंसेक्ट बाइट हुई और उसमें स्वेलिंग हो गई. दैट आर द इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द सेल इंजरी. स्वेलिंग हो गई, चेंज हो गया ना, पहले तो स्वेलिंग नहीं थी, उसके बाद कुछ दिनों बाद स्वेलिंग सबसाइड हो जाएगी और वो जगह लेवल बराबर हो जाएगा. यानी आपकी इंजरी कॉजिंग एजेंट जो कि मॉस्किटो था वो रिमूव हो गया, उसने जो टॉक्सिन छोड़े थे वो रिमूव हो गए, उसके बाद सेल अपनी नॉर्मल फंक्शन में आ गई. दैट इज नोन एज रिवर्सिबल सेल इंजरी. राइट, टॉन्सिलाइटिस हुई आपको और थोड़े समय में ठीक हो गई, वापस आपके टॉन्सिल्स ओरिजिनल पोजीशन में आ गए, छोटे हो गए, श्रिंक हो गए, फीवर नहीं है और बाकी सिम्टम भी नहीं है इन्फ्लेमेशन के, तो दैट टाइप ऑफ इंजरी इज नोन एज रिवर्सिबल सेल इंजरी. एंड द सेकंड वन इज इरिवर्सिबल सेल इंजरी. Irreversible cell injury, once the injury causing agent is removed, cell does not recover its original either anatomical or the physiological function. वो वैसे के वैसे नहीं रहेगी and ultimately goes into the death. वो डेड हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी. दैट इज नोन एज इरिवर्सिबल सेल इंजरी. यानी वहां तक सेल इंजरी चली गई है जहां से अब वो वापस नॉर्मल फंक्शन की तरफ रिगेन नहीं कर सकती है. राइट, द कॉजेज ऑफ द सेल इंजरी, और वी कैन से etiology of the cell injury. Number one is hypoxia. Hypoxia is what? That is lack of oxygen. Ischemia, that means death of cell due to inadequate supply of blood. Right? And physical agents like excessive heat, excessive cold, frostbite, excessive heat, excessive cold, कोई मैकेनिकल ट्रॉमा हो जाए, थर्मल इंजरी हो जाए, बर्न हो जाए, जल जाए, वो रेडिएशन इंजरी हो जाए. राइट, और एक और होती है रैपिड चेंज इन प्रेशर. अगर बहुत तेजी से कोई डाई लगाए, नीचे जाए समुद्र के अंदर, रैपिड चेंज है या तेजी से ऊपर आए, दैट इज ऑल्सो दिस टाइप ऑफ इंजरी इज नोन एज व्हाट? एनीवन? लास्ट टाइम भी पूछा था जब पढ़ाया था और अभी तक वो नहीं पता कर पाए है ना. देखते हैं कब तक पता करते हैं. एंड द नंबर फोर्थ इज केमिकल एजेंट्स. इंजरी बाय द केमिकल एजेंट्स, एसिड और बेस, एसिड और बेस, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड बेस, हाइड्रो लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. पैथोजेंस, पैथोजेंस इज द बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस. और आजकल तो फंगस हर कोई जानता है. कौन सी फंगस जानते हैं? ब्लैक, व्हाइट, येलो. कोई भी बची नहीं है, सारी आ गई है. इंजरी और डेथ ऑफ द सेल्स बिकॉज ऑफ द पैथोजेंस लाइक द बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड द पैरासाइट्स. And very good example of the pathogens is the plasmodium, multiplying the plasmodium inside the red blood cells. And sixth one is immunological. Immunological, immunological एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. एंटीजन एंटीबॉडी. antigen antibody reactions. Antigen antibody reactions, destruction of cells due to antigen antibody reactions. Nutritional causes like protein energy malnutrition, vitamin deficiency, mineral deficiency. Pathogenesis or the mechanism of the cell injury. बहुत सुनते हैं हम लोग, एंटीऑक्सीडेंट खाओ इंजरी नहीं होगी, सारा एंटीऑक्सीडेंट सब कुछ रिलेटेड है आपका फ्री रेडिकल से. जो भी फ्री रेडिकल बनेंगी, सपोज एग्जांपल लेते हैं. दिस स्लाइड इज विजिबल टू एवरीवन? यस मैम. यस मैम. Pathogenesis or the mechanism of the cell injury. What is the basic mechanism of the cell injury? Suppose we take one example like due to hypoxia. One of the very important cause of the cell injury is the hypoxia, that is lack of oxygen. Because of any reason, there is a lack of oxygen at the cell level. So the lack of oxygen causes what?
This decrease activity of oxidative phosphorylation. Everyone knows what is oxidative phosphorylation. That is ATP synthesis, right? So there is a decreased activity. कम ऑक्सीजन मिलेगी, oxidative phosphorylation है, so that means there is a need of oxygen for the oxidative phosphorylation, right? There is a decreased ATP synthesis. So this will, if there is a decreased ATP synthesis, this will lead to, आपको एनर्जी मिलेगी नहीं. ATP क्या है? आपके एनर्जी बॉन्ड, एनर्जी पैकेट. आपको ATP नहीं है, this will causes hazardous effects, and there is a decreased functioning of the cell. सेल को अपनी फंक्शनिंग के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी, and this leads to, ultimately leads to cell death. This ultimately leads to cell death. One of the very important cause or the very important mechanism of the cell injury is the free radical injury. At the cellular level, all kind of the cell injuries because of free radical. So what is free radical? Free radical is any molecular species with a single unpaired electron in an outer orbit. ऐसा कोई भी केमिकल, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर लेवल पे तो वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके आउटर ऑर्बिट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, खाली है. एंड ड्यू टू लैक ऑफ स्टेबल नंबर of electrons in the outer shell, they are in a constant search to bind with another electron to stabilize themselves. वो केवल जो आउटर शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है, घूम रहा है, उसको केवल पेयरिंग करनी है. So that electron in a constant search to stabilize themselves, because सिंगल इलेक्ट्रॉन है, बाहर घूम रहा है, तो वो अनस्टेबल है. हर चीज, मैंने आपको हमेशा बताया, हर चीज अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है, हर चीज नॉर्मल ऑप्टिमाइजेशन, वो अपने को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, टू स्टेबलाइज देमसेल्फ. अ प्रोसेस दैट कैन, बट इस प्रोसेस में वो जो इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा वो डैमेज क्या करेगा? डीएनए और द अदर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन सेल. दैट इज नोन एज फ्री रेडिकल. So what is free radical? Any molecular species with a single unpaired electron in an outer orbit shell, due to lack of stable number of outer shell electron, they are in a constant search to bind with another electron to stabilize themselves, a process that can cause damage to DNA and other parts of the human cell. This free radical, because of the unpaired electron in their outer orbit, is extremely unstable. Number third point, it reacts with inorganic and organic chemical. अब वो उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, वो कहीं से भी ले लेगा, either the inorganic, either the organic chemicals, right? वो आपकी सेल के अंदर अपने को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा. इन ऑर्डर टू दैट, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश में वो डीएनए डैमेज करता है और डैमेज करता है पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन cell. This is the basic underlying cause of the cell injury. That is the free radical injury. यहाँ पे एक नोट मैंने आपके लिए बनाया, क्योंकि ये बहुत ही जनरल नॉलेज की चीज है कि ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत सुनते हैं ना, कि एंटीऑक्सीडेंट खा लो, इंजरी का एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें, इस फ्रूट में होता है, इस इन वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट है, इस वाले खाने में ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है. एंटीऑक्सीडेंट्स मार्केट में आते हैं कि इसको कंज्यूम करो, इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी. क्यों अच्छी रहेगी? क्योंकि आपको सेल इंजरी नहीं होगी सेलुलर लेवल पे. अल्टीमेटली तो कोई भी डिजीज है वो तो सेल लेवल पे है, तो वो इंजरी क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम एंटीऑक्सीडेंट खा रहे हैं. तो एंटीऑक्सीडेंट ऐसा क्या करता है? देखिए, एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट द फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड टिश्यू डैमेज. वो फ्री रेडिकल जो डीएनए और अदर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन सेल को डैमेज कर रहा है उसको प्रिवेंट करता है. बट कैसे? बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स. उस फ्री को सिर्फ रेडिकल बना देगा. बट कैसे बनाएगा? प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल. वो उसको बनने ही नहीं देगा फ्री रेडिकल को. बट कैसे? क्योंकि वो तो फ्री रेडिकल बना हुआ है, उसके तो आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, उसको स्टेबल होना है. तो या तो ये करे कि उसको स्टेबल कर दे, एंटीऑक्सीडेंट क्या करे कि एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दे और स्टेबल कर दे. दैट इज नोन एज स्कैवेंजिंग देम, स्कैवेंजिंग ऑफ फ्री रेडिकल बाय एंटीऑक्सीडेंट. तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? स्कैवेंजिंग देम, यानी सफाई करने. स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है? ज्योति,
Puneet or anyone else? Ayushi, what does it mean by scavenging? स्केवेंजर्स पढ़े हैं भाई, इकोसिस्टम पढ़ा होगा तो जरूर पढ़े होंगे। इकोसिस्टम पढ़ा है? इकोसिस्टम पढ़ा है? स्केवेंजर्स क्या होते हैं? सफाई कर्मी होता है, जैसे एक हाँ, सफाई करने वाले कौन? मैम जैसे एक होता है लेग हीमोग्लोबिन होता है मैम, जो इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं स्केवेंजर्स में अभी। मैम स्कैवेंजर्स जैसे हमारे सफाई कर्मी इकोसिस्टम होता है। में, हमारे इकोसिस्टम में स्केवेंजर्स कौन है? Vultures. एनीवन? जो मैम Ma'am, सफाई कर्मी होते vultures. हैं। हाँ, कौन कौन इकोसिस्टम में स्केवेंजर्स कौन है? Ma'am, eagles and vultures. हाँ, वेरी गुड। ज्योति ने बताया, Ayushi ne ma'am. आयुषी वेरी गुड। और एक और नाम सुना होगा आपने, फ्लैश फ्लाई। Yes sir. उस सड़े गले फ्लैश जानवर मरे होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल मरे होते हैं, उनको खाती फ्लैश फ्लाई। और वल्चर्स ये क्या करते हैं? ये डेड चीजों को खाते हैं, सड़ी गली चीजों को। यानी वो इकोसिस्टम में एक तरह का सफाई का काम करते हैं। उसका तो कोई रीयूज नहीं है, उसका तो कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, सफाई का काम करते हैं। लाइक दैट दीज एंटीऑक्सीडेंट्स दे प्रिवेंट द डैमेज बाई द फ्री रेडिकल्स बाई स्कैवेंजिंग देम, उनको एक इलेक्ट्रॉन दे करके उनकी सफाई कर दी। और बाई प्रमोटिंग देयर डीकॉम्पोजिशन, या फिर उसको उसके डीकॉम्पोजिशन को प्रमोट करें कि वो खत्म हो जाए, वो रहे ही ना। So they are known as those things are known as antioxidant। बहुत सुना होगा ना, एंटीऑक्सीडेंट खा लो, एंटीऑक्सीडेंट खा लो। जिस तरीके से अंडरलाइन कॉज ऑफ एनी पैथोलॉजिकल चेंजेस और एनी पैथोलॉजिकल मॉडिफिकेशन और एनी टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल डिजीज, और if there is any alteration towards abnormality, is the cell injury at the cellular level। Like that antioxidant ये आपके बेस लाइन पे काम कर रहे हैं, किसको? फ्री रेडिकल्स को हटा रहे हैं, इंजरी होने नहीं देंगे। फ्री रेडिकल्स आगे जाके इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, कैंसर कर सकते हैं, चेंजेस कर, डीएनए में ही चेंज कर दिया उठा करके। तो आजकल तो डीएनए और आरएनए में चेंज कर करके क्या क्या होता है वो सबको पता है, पूरी दुनिया देख लिया है ना। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इंपॉर्टेंट फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व इन द सेल इंजरी, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ये कॉमन है। कहां से आते हैं ये? आयोनाइजेशन, रेडिएशन, ये चेंज करते हैं केमिकल से, और इस तरह से ये बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। फ्री रेडिकल्स कॉजेस व्हाट? एट द बेस लेवल और एट द बॉटम लेवल फ्री रेडिकल कॉजेस व्हाट? नंबर 1 लिपिड पेरोक्सीडेशन, प्रोटीन ऑक्सीडेशन, डीएनए डैमेज, साइटोस्केलेटन डैमेज। कुछ तो बचा ही नहीं सेल में। लिपिड का पेरोक्सीडेशन कर दिया तो वो आपकी जो मेम्ब्रेन बनती है, कैसे बनती है? बाइलेमाइनर मॉडल ऑफ दी सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है आपका? बाइलेमाइनर मॉडल में लिपिड और प्रोटीन। लिपिड का परऑक्सीडेशन कर दिया, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन कर दिया, डीएनए ने न्यूक्लियस का भी डैमेज कर दिया, उसका सेल का साइटोस्केलेटन ही पूरा डैमेज हो गया। एंड अल्टीमेटली सेल क्या बचेगी? बचेगी नहीं। ऑफ व्हाट? इस्कीमिया, आयोनाइजेशन, केमिकल टॉक्सिसिटी, inflammatory changes, chemical carcinogens, phenyl, like the phenyl and the benzene dye. This benzene dye is a very important. Phenyl and the benzene dye. This benzene dye is a very important role in production of the chemical carcinogen. कैसे होता है? लेड बैटरीज बनती हैं, बेंजीन डाई कितनी कितनी जगह यूज होती है, जगह जगह कार्सिनोजन फैले हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी। वी ऑल नो व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन अ रिवर्सिबल सेल इंजरी। इफ सेल हैज टू बी सर्वाइव, उसको वापस अपने आफ्टर इंजरी कॉजिंग एजेंट रिमूव होने के बाद उसको वापस अपनी जगह पे पहुंचना है, बट कैसे? Morphological changes in reversible cell injury. One of the important and the commonest morphological change is the cellular swelling. Morphology change means size and shape में change. तो cellular swelling, cell फूल करके बड़ी हो जाएगी. So first is the cellular swelling, second one is the fatty changes, third one is the hyaline changes or mucoid changes.
इतना कुछ चेंज हो करके वो वापस अपनी जगह पे वापस आ सकती है. These morphological changes are in reversible cell injury. मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन रिवर्सिबल सेल इंजरी, अगर सेल को रिवर्ट होकर के वापस नॉर्मल आना है तो इन्हीं में से कोई चेंज होना पड़ेगा. इसके आगे वाला कोई चेंज होगा तो वो रिवर्सिबल सेल इंजरी में चली जाएगी. तो दोज आर द कॉजेज ऑफ द सेल डेथ. वो हम लोग जानते हैं कॉजेज ऑफ द सेल डेथ, एपोप्टोसिस, ऑटोलाइसिस, उन सब में चले जाएगी. अगर वहां पे नहीं जाना है, इसको रिवर्ट करना है, तो यही चेंजेस होने चाहिए: सेलुलर स्वेलिंग, फैटी चेंजेस, हाइलाइन चेंजेस एंड द म्यूकोइड changes. One of the important change is the cellular swelling. It is the commonest and the earliest form of the cell adaptation. हमें अच्छे से पता है, एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है, कोई भी चोट लगती है वहां पे स्वेलिंग हो जाती है. मॉस्किटो बाइट होती है, स्वेलिंग हो जाती है. कोई मधुमक्खी काट के जाती है, स्वेलिंग हो जाती है. आंख में कोई कीड़ा काट ले तो स्वेलिंग. कहीं भी कोई चीज अगर हमें लग जाए, सबसे पहले क्या होता है, बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, सूज जाता है वहां पे, सेलुलर स्वेलिंग. सो दिस इज द कॉमनेस्ट and the earliest form of the cell adaptation. It occurs in all type of injury. It may be hydropic, means उसमें water हो सकता है. It may be hydropic, or there is accumulation of water inside the cells, or there is a vascular degeneration. या तो पानी बाहर से आकर के उसके अंदर इकट्ठा हो, और अंदर ही वैक्यूल्स अगर फट जाए उसके अंदर तो भी swelling होगी. Right? The causes of the cellular swelling are bacterial toxins, chemicals, poisons, burns, high fever, intravenous administration of the glucose and saline. एक्सेस में दे दिया, हाँ सूज जाता है पूरा, इंट्रावीनस चढ़ रहा है. बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, कोई भी इन्फ्लामेशन, कोई भी इन्फेक्शन होता है, उसकी चारों तरफ स्वेलिंग होती है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स. केमिकल्स, हमें पता ही है, कोई भी केमिकल अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड गिरे तो वहां पे स्वेलिंग तो होनी ही होनी है. केमिकल्स, पॉइजन्स मतलब जहर ही नहीं खा लेना है. पॉइजन्स मीन्स biological poisons like snake bite, like bee bite, like mosquito bite. Burns, उसमें तो swelling होती है, बड़े बड़े blisters पड़ते हैं उसमें. तो हाई फीवर, बहुत तेज फीवर होता है, पूरी बॉडी में swelling हो जाती है. इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज. Microscopic changes are in the cellular swelling are the cell is swollen, microvasculature is compressed. अंदर जो, जब पूरी सेल सूज गई है तो अंदर जो माइक्रोवेस्कुलेचर है वो क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा, दैट इज compressed. And there is a distended endoplasmic reticulum, distended nucleus, blebs in the plasma membrane, mitochondrial swelling, changes in the plasma membrane. There are the presence of blebs, जैसे कि उभरा सा हो जाएगा क्योंकि अंदर से प्रेशर आ रहा है, सेल स्वेल की swelling हो गई है. There is a changes in the mitochondria, there is a swelling in the mitochondria, changes in endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulums are dilated, राइबोसोम्स गेट डिटैच्ड, वो उससे अलग हट जाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस तो यहाँ पर होगी. चेंजेस इन द न्यूक्लियस, देयर इज अ डीएनए डैमेज एंड देयर इज अ डायलेटेशन ऑफ द न्यूक्लियस. In the next lecture we will discuss the fatty changes, iron changes and mucoid changes. रिवीजन क्लासेस हैं आपके ये लेक्चर पहले भी हो चुके हैं, सबके पास होंगे ना लेक्चर? Yes, ma'am. Yes, ma'am.